آج کے اس لیکچر میں ہم اردو کے عظیم ادیب منشی پریم چند کے مشہور افسانے کفن کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے طلباء نے یہ افسانہ 2-3 بار یقیناً پڑھا ہوگا۔ پریم چند کا افسانہ کفن ہندوستانی ادب کا مثالی فن پارہ ہے۔ 31 جولائی سن 1880 سے 8 اکتوبر سن 1936 تک 56 سال 2 ماہ اور 8 دن کے عرصہ حیات میں پریم چند نے لگ بھگ 30 برس ادب کی خدمت پر صرف کیے۔ 12 چھوٹے بڑے ناول، 300 سے زیادہ افسانے، متعدد مضامین، تبصرے، تجزیے اور اداریے وغیرہ ان کی یادگار ہیں۔ لگ بھگ 30 برس کی ادبی زندگی کا یہ اثاثہ اب صرف پریم چند کا نہیں بلکہ اردو زبان و ادب، بالخصوص اردو فکشن کا ایسا پرمعنی اثاثہ ہے جس نے اردو افسانے کی قدر و منزلت میں کئی لحاظ سے اضافہ کیا ہے۔ پریم چند کی اس عطا کا اردو ادب کے ناقدوں، شاعروں اور مورخوں نے اپنے اپنے انداز میں بھرپور اعتراف کیا ہے۔ کفن پر گفتگو سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم پریم چند کے ادب کی نمایاں خصوصیات اور اس کے پس منظر پر ایک نظر ڈال لیں۔ پریم چند نے اپنے افسانوں اور ناولوں میں ہندوستانی دیہات کی معاشرتی زندگی اور اس کے مسائل کو پیش نظر رکھا ہے۔ پریم چند کا بنیادی تجربہ تو ہندوستانی معاشرے کا تجربہ ہے، لیکن ان کے افسانوں اور ناولوں کا مقصد انسانی معاشرے کے بارے میں اپنی فہم اور تشویش کو قارئین تک منتقل کرنا ہے، تاکہ وہ بھی انسانی فلاح و بہبود کے لیے غور و فکر پر آمادہ ہو سکیں۔ فہم و تشویش کی ترسیل کے لیے پریم چند نے جس ماحول اور جن کرداروں کا انتخاب کیا، اس کا سبب یہ ہے کہ ان کی زندگی کا بڑا حصہ مشرقی اتر پردیش کے دیہات اور دیہات کے اطراف میں گزرا تھا۔ وہ دیہی باشندوں کے مسائل اور مسائل کے اسباب سے بخوبی واقف تھے، اور وہ ان کے طور طریقوں اور نفسیات کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ پریم چند کی ادبی شخصیت کا جوہر اس احساس میں پوشیدہ ہے کہ دیہات میں بسنے والے افراد ہمارے ملک کی وہ غالب اکثریت ہیں جن کے معاشرتی مسائل اور باطنی جذبات و احساسات کی تفہیم کے بغیر نہ تو ہندوستان کو سمجھا جا سکتا ہے، نہ ہی پورے عالم کے عام آدمی کو۔ گویا دنیا بھر کے عام آدمی کو سمجھنے کی کنجی ہندوستان ہے۔ لہذا پریم چند کے افسانوں کو بار بار پڑھنے والے قاری میں آدمزاد کو اس کے متنوع رشتوں کے ساتھ سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت پیدا ہونا یقینی ہے۔ اردو فکشن اور شاعری کے بزرگ نقاد پروفیسر احمد صدیق مجنوں گورکھپوری نے پریم چند کے فن کا پس منظر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، اردو مختصر افسانے کی ابتدا منشی پریم چند آجہانی سے ہوتی ہے۔ یوں تو سرشار کے فسانہ اعداد میں جو ایک اچھا خاصا نگار خانہ پکچر گیلری ہے، مختصر افسانے کے بیج اس میں موجود تھے، اور اس کے بعد اکا دکا مختصر افسانے اردو میں لکھے جا چکے تھے، لیکن اردو میں جس شخص نے پہل اس کو ایک مستقل فن بنایا وہ پریم چند ہیں۔ پریم چند نے نہ صرف اردو مختصر افسانے کی بنیاد ڈالی بلکہ اردو افسانے میں اس سماجی اور معاشرتی واقعیت، سوشل اینڈ کلچرل ریئلزم کو مستحکم اور پائیدار بنایا جس کی سست اور ناقص کوششیں اس سے پہلے نذیر احمد اپنے اصلاحی ناولوں میں اور سرشار اپنے مزاحیہ ناولوں میں کر چکے تھے۔ خلوص اور نیکنیتی کے ساتھ زندگی پر تبصرہ کرنا اور اس کے نئے پہلوؤں کو روشنی میں لا کر لوگوں کے اندر نئی بصیرتیں پیدا کرنا جس نے پہلی مرتبہ ہم کو سکھایا وہ پریم چند ہیں۔ ممتاز نقاد اور مورخ ادب
प्रोफेसर सैयद एहतशाम हुसैन ने लिखा है, गांव के एक मुफलिस कुनबे में जन्म लेकर और मशक्क़त की ज़िंदगी बसर करके प्रेमचंद ने अदब में उन आम लोगों को जगह दी जिन्हें अच्छे अच्छे अदीब अदब का किरदार नहीं बना सके थे। अपनी सभी तहरीरों में उन्होंने मुल्क की समाजी, माशी और सियासी हालत का तज्ज़िया करके इस्लाह व तब्दीली की राह दिखाने की सही की है। इसीलिए फ़नी नुक्ता नज़र से वो हकीकत पसंदों में बड़ा बुलंद मकाम रखते हैं। अब हम अफसाना कफ़न की मुफस्सल मतनी तफ़हीम शुरू करते हैं। तलबा ने ये अफसाना पढ़ते हुए देखा होगा कि इसे मुसन्निफ़ ने 3 हिस्सों में तक़सीम किया है। पहला हिस्सा इस पैराग्राफ से शुरू होता है। झोपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे थे और अंदर बेटे की नौजवान बीवी बुधिया दर्द ज़ह से पछाड़ें खा रही थी और रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दिलखराश सदा निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, फ़ज़ा सन्नाटे में गर्क, सारा गांव तारीकी में जज्ब हो गया था। ये अफसाने की तमहीद है जिसमें मुसन्निफ़ या वाक़े का रावी ऐसा मंज़र बयान कर रहा है जो किसी दूसरे का देखा और सुनाया हुआ नहीं बल्कि ख़ुद उसने देखा है। लिहाजा वो पूरे एतमाद से बता रहा है कि अलाव के सामने खामोश बैठे हुए मर्दों का बाहमी रिश्ता क्या है, झोंपड़े के अंदर कौन है, किस हालत में है, हालत की वजह क्या है, मौसम कौन सा है, वक्त क्या है और ये अहवाल किस जगह का है। इस मंज़र के दूसरे हिस्से में मुसन्निफ़ ने इन बाप बेटे को लबकुशा किया है जो बुधिया की पुरदर्द सदाओं पर कलेजा थाम लेते थे। ये मकाल में माधो और घीसू पर बुधिया की जहमत का दूसरा रद्द अमल है। मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन तड़पते हो गया, जा देख तो आ। माधो दर्दनाक लहजे में बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या आऊँ। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ जिंदगानी का सुख भोगा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। इन मकालमों के ज़रिए मुसन्निफ़ बता रहा है कि बुधिया को दर्द-ए-ज़ह से तड़पते पूरा दिन गुजर गया है। इस बिना पर बूढ़े घीसू का अंदाज़ा है कि वो ज़िंदा नहीं बचेगी और माधो गुज़िश्ता सुबह से रात के इस पहर तक बुधिया के पास नहीं गया। बाप चाहता है कि माधो झोंपड़े में जाकर बीवी की देखभाल करे। माधो के दर्दनाक लहजे से मुसन्निफ़ ने ज़ाहिर किया है कि वो बीवी की ज़हमत को शिद्दत से महसूस कर रहा है और चाहता है कि उसे किसी भी तरह ज़हमत से छुटकारा मिल जाए, ख्वाह मरकर ही सही। लेकिन ज़हमत के किसी मदावे से महरूमी की शर्म उसे बुधिया के पास जाने से रोक रही है। बाप उसे अंदर भेजने के लिए बेवफाई का ताना भी दे रहा है, मगर वो ताने के मुकाबले में अपने खौफ और कमज़ोरी को ढाल बना लेता है। माधव के इस जुमले पर मुनक़ता होने वाला 10-12 सत्रों का ये मंज़र पढ़कर महसूस होता है कि घीसू अपनी बहू का हमदर्द व गमख्वार है, इसीलिए माधव को अंदर जाने का तकादा कर रहा है। इस मुनक़ता मंज़र के बाद प्रेमचंद ने तकरीबन 1 सफ़े पर मुश्तमिल पैराग्राफ में इन दोनों के मिजाज और तर्ज़ ज़िंदगी का अहवाल बयान किया है, जिसमें वाज़ेह किया है कि माधो और घीसू जिस बुझे हुए अलाव के सामने बैठे हैं उसमें उन्होंने वो आलू भूने हैं जो किसी के खेत से खोद कर लाए थे। मज़कूरा अहवाल बयान करने के बाद प्रेमचंद ने एक बार फिर बाप बेटे को उसी मौजू पर बातें करते हुए दिखाया है जो पहले मुनक़ता कर दिया था। घीसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या हालत है उसकी, चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है,
किसके घर से आए। माधव को अंदेशा था कि वो कोठरी में गया तो घेसू आलूओं का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूँ ही। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन उसके पास से हिला भी नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी नहीं। कभी उसका मुंह नहीं देखा। आज उसका अघरा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। बाप बेटे के इस मकालमे से प्रेमचंद ने 2 काम लिए हैं। पहला ये कि इसके दौरान माधव का अंदेशा बयान करने का मौका पैदा कर लिया है। दूसरा ये कि अफसाना पढ़ने वाले के दिल से ये एहसास पूरी तरह ज़ाइल कर दिया है कि माधव या घीसू को बुधिया से हमदर्दी है। बाप बेटे की इन बातों में प्रेमचंद की ये फ़नी हुनरमंदी भी पोशीदा है कि उन्होंने अपने लफ्ज़ों में सिर्फ माधव का अंदेशा बयान किया है, जबकि हकीकतन तो घीसू भी उसी अंदेशे में घिरा हुआ है। मगर प्रेमचंद ने उसकी बातनी कैफियत जाहिर करने के लिए मकालमे का बिल वास्ता यानी इनडायरेक्ट अंदाज इख्तियार किया है। घीसू के मुकालमों पर गौर करने से अंदाज़ा होता है कि वो भी भुने हुए आलूओं के पास माधव को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। इसी बाइस वो अपनी औरत के पास 3 दिन बैठे रहने की बात कह रहा है। ये गालिबन उसका झूठ भी है और माधव पर दूसरी बार तानाजनी भी, ताकि 3 दिन तवील निगहदाश्त का बेखान माधव को 10-5 मिनट ही के लिए अलाव में दबे हुए आलूओं से दूर ले जा सके। माधव इन बातों का असल मतलब भांप कर गुफ्तगू का रुख बदल देता है। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सोंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान बच्चा दें तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वही तब बुला कर देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ ना था, मगर इसी तरह हर बार काम चल गया। घीसू के आखिरी फ़िक्रे यानी इसी तरह हर बार काम चल गया की बिना पर अफसाने के कारी को याद आता है कि बाप बेटे के मिजाज और तर्ज अमल के अहवाल में प्रेमचंद ने इन्हें कामचोर और बेगैरत भी बताया था। उस इबारत में प्रेमचंद ने एक जानिब तो गांव के शातिरों यानी किसानों का इस्तेसाल करने वालों से घीसू का मवाजना किया है, दूसरी जानिब घीसू का मवाजना उन किसानों से किया है जो शब रोज़ की शदीद मेहनत के बावजूद उससे बस कुछ ही कम इफलास का शिकार हैं। इस मवाजने के ज़रिए प्रेमचंद अपने कारी को महसूस कराना चाहते हैं कि मेहनत से जी चुराने वाले घीसू जैसे लोग माशरे की नज़र में भले ही काबिल मलामत हों, मगर उन्हें शख्सी तौर पर ये इत्मीनान हासिल रहता है कि शातिर व फितना परदाज तबका किसानों की तरह उन्हें अपने हथकंडों का शिकार बनाने से कासिर है। शातिरों की ये लाचारी घीसू जैसों की खुद मुख्तारी है। प्रेमचंद ने अफसाने के इस इख्तितामी 1.25 सफ़े में बताया है। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था। इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की ज़बानें जल गईं। घेसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में इसे जो सेरी नसीब हुई थी वो इसकी ज़िंदगी में एक यादगार वाक़या थी और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। बोला, वो भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। भोज में शामिल खानों की अक़साम और अफराद का बयान सुनकर माधव ने उन तकल्लुफ़ात का मज़ा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज खिलाता। तुमने एक 20 पूड़ियाँ खाई होंगी। 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा पट्टा था, तू उसका आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डाले सो रहे। अफसाने के पहले हिस्से में वाज़ेह हो गया कि घीसू और माधव किस क़िमाश और मिजाज के लोग हैं।
اور ان کے طرز عمل کے معاشرتی اسباب کیا ہیں۔ یہ باتیں پریم چند نے اپنے براہ راست بیان کے ذریعے بھی اور کرداروں کے قول و عمل کے واسطے سے بھی نمایاں کی ہیں، تاکہ ان کی رگو پے میں دھمکتی ہوئی بھوک اور لذت کام و دہن کی شدید لالسا ہر نوع کے قارئین کے ذہنوں میں پیوست ہو جائے۔ ان پر حاوی بھوک اور ندیدے پن کی مزید وضاحت کے لیے پریم چند نے گھیسو کی زبان اور تالو پر 20 برس پہلے ٹھاکر کی بارات میں کھائے ہوئے بھوج کے ذائقے زندہ کیے ہیں، اور ان کے باعث مادھو کے منہ میں بھر آئی رال گویا ان جملوں سے ٹپکتی ہوئی دکھائی ہے: اب ہمیں کوئی ایسا بھوج کھلاتا میں 50 کھا جاتا۔ ان جملوں سے پریم چند واضح کر رہے ہیں کہ 60 سالہ گھیسو نے آج سے 20 برس پہلے ایک بارات کے بھوج میں اپنے کام و دہن کی تواضع کی تھی۔ یہ اس کی زندگی میں ایک یادگار واقعہ ہے، مگر مادھو کی زندگی میں تاحال ایسا نہیں ہوا۔ یعنی گھیسو کے بعد کی پیڑھی اپنے دسترخوان پر تو کجا کسی بارات کے بھوج میں بھی ایسا اور اتنا کچھ مانگنے کھانے سے محروم ہو چکی ہے۔ حصہ اول کی آخری سطروں میں پریم چند نے گھیسو اور مادھو کے بارے میں بتایا ہے کہ آلو کھا کر دونوں نے پانی پیا اور وہیں الاؤ کے سامنے اپنی دھوتیاں اوڑھ کر پاؤں پیٹ میں ڈالے سو رہے، جیسے دو بڑے بڑے اژدر گنڈلیاں مارے پڑے ہوں، اور بدھیا ابھی تک کراہ رہی تھی۔ باپ بیٹے کو اژدر یعنی بہت موٹے اور لمبے سانپ سے تشبیہ دے کر مصنف اپنے قاری کے دل و دماغ میں ان سے نفرت اور کراہت پیدا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ بدھیا کی دل خراش آوازوں اور کراہوں سے لاپرواہ اپنا پیٹ بھرنے میں لگے رہے اور اب بے فکر سو رہے ہیں۔ ان دونوں کے مفصل احوال کے دوران پریم چند نے بدھیا کے بارے میں لکھا ہے: جب سے یہ عورت آئی تھی اس نے اس خاندان میں تمدن کی بنیاد ڈالی تھی۔ پسائی کر کے گھاس چھیل کر وہ سیر بھر آٹے کا انتظام کر لیتی تھی اور ان دونوں بے غیرتوں کا دوزخ بھرتی رہتی تھی۔ پہلے حصے میں گھیسو اور مادھو کی بھوک، لذیذ کھانوں کی لالسا، بے غیرتی اور بے رحمی کی بالواسطہ اور بلا واسطہ وضاحت کے بعد پریم چند نے افسانے کے دوسرے اور تیسرے حصے میں کرداروں کی مذکورہ بالا صفات کو کچھ واقعات کے ذریعے مزید نمایاں کیا ہے۔ افسانے کا دوسرا حصہ۔ صبح کو مادھو نے کوٹری میں جا کر دیکھا تو اس کی بیوی ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اس کے منہ پر مکھیاں بھنک رہی تھیں، پترائی ہوئی آنکھیں اوپر ٹنگی ہوئی تھیں، سارا جسم خاک میں لت پت ہو رہا تھا۔ اس کے پیٹ میں بچہ مر گیا تھا۔ مادھو بھاگا ہوا گھیسو کے پاس آیا، پھر دونوں زور زور سے ہائے ہائے کرنے اور چھاتی پیٹنے لگے۔ پڑوس والوں نے یہ آہوزاری سنی تو دوڑے ہوئے آئے اور رسم قدیم کے مطابق غم زدوں کی تشفی کرنے لگے۔ پہلے پارے میں بدھیا کی لاش کی لرزہ خیز حالت دیکھ کر مادھو کے بھاگنے اور پھر باپ بیٹے کی ہائے ہائے اور سینہ کوبی سے قاری کو محسوس ہوتا ہے کہ بدھیا کی موت سے ان دونوں کو شدید صدمہ ہوا ہے۔ صدمے کا شدید ریلا انہیں اس زمیندار کے سامنے لے گیا جس سے آنکھ چرانے میں ہی ان کی عافیت تھی۔ باپ بیٹے روتے ہوئے گاؤں کے زمیندار کے پاس گئے۔ وہ ان دونوں کی صورت سے نفرت کرتے تھے، کئی بار انہیں اپنے ہاتھوں سے پیٹ چکے تھے۔ چوری کی علت میں، وعدے پر کام پر نہ آنے کی علت میں۔ پوچھا، کیا ہے بے گھسوا، روتا کیوں ہے؟ اب تو تیری صورت ہی نظر نہیں آتی۔ اب معلوم ہوتا ہے تم اس گاؤں میں رہنا نہیں چاہتے۔ گھیسو کو زمین پر سر رکھتے دیکھ کر اور اس کی یہ باتیں سن کر افسانے کا قاری سمجھ لیتا ہے کہ یہاں گھیسو کی ڈھکوسلے بازی اور چرب زبانی دکھا کر پریم چند اس کی ہائے ہائے اور سینہ کوبی کا مکر واضح کر رہے ہیں۔
अपने पैदा करदा एहसास को कारी के दिल से यकसर फना करने के लिए प्रेमचंद ने अगले पारे में लिखा है, जमींदार साहब रहमदिल आदमी थे, मगर घेसू पर रहम करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दें, चल दूर हो यहाँ से, लाज घर में रख सड़ा। यूं तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हराम खोर कहीं का बदमाश। जमींदार साहब के जी में आई बात को अपने लफ्ज़ों में बयान करने के बाद प्रेमचंद उनके अमल के बारे में कहते हैं, मगर ये गुस्से या इंतकाम का मौका न था। तौबन करहन 2 रुपये निकाल कर फेंक दिए, मगर तशफ़ी का एक कलमा भी मुँह से ना निकाला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, गोया सर का बोझ उतारा हो। ढकोसले और चरब ज़बानी का वार ज़मींदार साहब पर कामयाब रहा तो घीसू ने इसी हरबे को गांव के दीगर बाशिंदों पर भी आजमाया और माकूल कामयाबी हासिल की। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार की जुर्रत क्यों कर होती। घेसू जमींदार के नाम का ढिंडोरा पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घेसू के पास 5 रुपये की माकूल रकम जमा हो गई। किसी ने गल्ला दिया, किसी ने लकड़ी। अफसाने का दूसरा हिस्सा मुकम्मल करते करते मुसन्निफ ने घीसू और माधव की तीनत के तकरीबन तमाम पहलू नुमाया कर दिए हैं और ये भी बता दिया है कि मक्कारी और ढकोसलेबाजी के तुफैल में घीसू के पास 5 रुपये की माकूल रकम जमा हो गई। इस बिना पर कारी को याद आ सकता है कि अफसाने के पहले हिस्से में इन बाप बेटे के पास कुछ आलू थे, यानी ये 5 रुपये इनका दूसरा हुसूल है। इस दूसरे हुसूल के बिना पर मुसन्निफ ने अफसाने का तीसरा हिस्सा तहरीर किया है जो अफसाने का उरूज है। बाजार में पहुंचकर घेसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है? क्या बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चीथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू करते। दोनों एक दूसरे के दिल का माजरा मानवी तौर पर समझ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, यहाँ तक कि शाम हो गई। दोनों इत्तफाक से या आमदन एक शराब खाने के सामने आ पहुँचे और गोया किसी तयशुदा फैसले के मुताबिक अंदर गए। वहाँ ज़रा देर तक दोनों तजब्जुब की हालत में खड़े रहे। फिर घेसू ने 1 बोतल शराब ली, कुछ गज़क, और दोनों बरामदे में बैठकर पीने लगे। इस इख्तबास में शामिल गुफ्तगू के ज़रिए प्रेमचंद अपने कारी को महसूस कराना चाहते हैं कि ये बाप बेटे अपने हाथ आई सारी रकम सिर्फ कफन की खरीद पर खर्च करने के हक़ में नहीं। झोली में कहीं से आ टपके फलकी सी हैरत और अचानक इस्तेहकाक ने बाप बेटे को शराब खाने के सामने और फिर अंदर तक पहुंचा दिया। तकरीबन 1.25 सफ़ा आगे बयान होने वाले एक जहनी तजब्सुब से ठिठकने के बाद घीसू ने 1 बोतल शराब ली, कुछ गज़क, और दोनों बरामदे में बैठकर पीने लगे। कई कुज्जियाँ पैहम पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। सुरूर के इस आलम में बाप बेटे की आइंदा गुफ्तगू की बलागत प्रेमचंद की फन्नी महारत का इंतहाई कमाल है। इस गुफ्तगू को उन्होंने बाप बेटे की गहरी बातिनी कैफियत जाहिर करने का जरिया बनाया है। गुफ्तगू का महवर बुधिया का कफन है जिसकी रकम से शराब खरीदी गई है। कफन लगाने को दुनिया का दस्तूर करार देने के बाद माधव ने घीसू से पूछा, लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है? घेसू हंसा, कह देंगे रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। माधव भी हंसा। इस गैर मुतवक्का खुशनसीबी पर कुदरत को इस तरह शिकस्त देने पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिला कर।
माधव के खौफ भरे सवाल का जवाब घीसू ने जिस तरह की हंसी और आसानी के साथ दिया है, उससे एक हसास कारी पर लर्जा तारी हो सकता है। मक्कारी और बेगैरती में लिथड़े इस जवाब के फौरीपन से अंदाज़ा होता है कि घीसू के जहन में तो ये सवाल बहुत पहले पैदा हो चुका था जो इस वक्त माधव की ज़बान पर आया है। ये सवाल और ये जवाब दरअसल वो तज़ब्ज़ुब है जो बाप बेटे ने उस वक्त ज़रा देर को महसूस किया था जब शराब खाने के अंदर पहुंचकर ज़रा देर तक खड़े रहे थे। जब घीसू ने आगे बढ़कर शराब खरीदी तो दरअसल उसका मुकाबलतन ज़्यादा मक्कार जहन ये जवाब ईजाद कर चुका था। सवाल के फौरी जवाब से कबल घीसू की हंसी गालिबन अपने आप को दाद भी है और माधव पर तंज भी। प्रेमचंद ने बताया है कि बाप की हंसी और जवाब सुनकर बेटा भी हंसा, यानी घीसू का मनगढ़ंत बहाना सुनकर माधव के दिलो दिमाग से वो पहाड़ सा बोझ गोया एकदम उतर गया जो गांव वालों की मुमकिना जवाब तलबी के तसव्वुर ने तारी कर दिया था। ये गैर मुतवक्के नजात पाकर माधव को महसूस हुआ कि हम बाप बेटे इस वक्त कितने मज़े में हैं। इसी बाइस वो कह उठा, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिला कर। माधव की ज़बान से बुधिया की ये अच्छाई दर अच्छाई बयान करके प्रेमचंद ने उसे माधव के दिलो दिमाग पर एक फैज़ रसां नक्श के तौर पर शब्द कर दिया है। यहाँ से अफसाने के आखिर तक माधव की हर बात किसी न किसी शक्ल में बुधिया से मुताल्लिक़ है और माधव के बाइस घीसू भी उसके बारे में बातें करने पर मजबूर है। पूरे अफसाने में ओझल बुधिया से मुताल्लिक़ माधव और घीसू के मकालमे प्रेमचंद के पुरकमाल फ़नी हुनर का नमूना है, क्योंकि इनके ज़रिए वो बुधिया जो डील डॉल और नाक नक्शे से महरूम है ऐसी क़ुव्वत इंकशाफ की तरह उभरी है जिसने घीसू और माधव के ज़हन दिल की एक एक परत अफसाना पढ़ने वाले के दिमाग में पेवस्त कर दी है। अफसाना कफ़न की मजमूई मानवियत के बारे में उर्दू अदब के नाक़िदों ने बहुत कुछ कहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा मारूफ ये है कि प्रेमचंद ने घीसू और माधव जैसे अफराद की मजहूलियत का सबब उस माशरे को करार दिया है जो मेहनत कश को उसकी मजदूरी का जायज़ बदल नहीं देता। इस मारूफ मानवियत का जवाज़ बिलाशुबा अफसाने के मतन में मौजूद है, लेकिन ये मानवियत इस लिहाज से अधूरी है कि इसमें घीसू और बिलखुसूस माधव के उन क़ल्बी एहसासात व जज्बात का इनकशाफ शामिल नहीं जो प्रेमचंद ने मसरूर माधव के मुकालमों में पेवस्त किए हैं। उन मकालमों के ज़रिए प्रेमचंद बाप बेटे की तीनत का मवाजना भी कर रहे हैं और 60 साला घीसू को माधव से ज़्यादा चालाक और ढीठ भी बावर करा रहे हैं। घीसू से माधव के सवालों में उसका कच्चापन और मासूमियत झलक रही है। संगदिल घीसू से पहले माधव आसमान की तरफ फ़र्क़ अक़ीदत झुकाकर बुधिया के लाज़मन जन्नत में जाने का यकीन जताकर बुधिया की ज़िंदगी और मौत के दुख याद करके और आँखों पर हाथ रखकर रोते हुए साबित कर रहा है कि अभी उसका अक़ीदा ज़िंदा है, दिल का गुदाज बाक़ी है और आँखें मुर्दा पत्थर नहीं बनी हैं। अफसाने के आखिरी मकालमे में घीसू की ज़बानी प्रेमचंद ने ज़िंदगी और इसके नित नए रंगों को माया जाल, जिन जाल और मोह माया कहा है, लेकिन बाप बेटे की आवाज़ में एक भजन का ये मिसरा भी कारी के गोश गुजार किया है, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। गौर करने पर खुलता है
کہ مصرے کے نامعلوم خالق نے زندگی کو ٹھگنی کہا ہے، کیونکہ یہ اپنی اداؤں سے آدم زاد کو رجھاتی اور لوٹتی رہی ہے۔ اس کا یہ پراسرار و زومانی عمل ہنوز جاری و ساری ہے۔ محویت کے عالم میں زندگی کا گنگان کرتے گھیسو اور مادھو کے ذریعے پریم چند افسانہ کفن کے قاری کو غالباً یہ محسوس کرانا چاہتے ہیں کہ معاشرے کے کسی طبقے یا چند افراد کا احوال بھلے ہی خرابی و ناگواری کی انتہاؤں کو چھونے لگے، زندگی کے دامن میں ان کے ناچنے گانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ موجود رہتا ہے۔ انہیں وہ بہانہ مل سکتا ہے جس طرح وہ ڈھونڈنا چاہیں، کیونکہ زندگی ہنوز باقی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ اس لیکچر کے بعد طلبہ افسانہ کفن کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ پھر ملیں گے کسی اور نئے اور اہم موضوع کے ساتھ۔ شکریہ۔